Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to read chapter 3, and the name of this chapter is Computer Memory and Storage Devices. So from the name itself, we can guess that in this chapter we are going to study about computer memory and various storage devices. Okay, so let's get started. The memory of the computer is just like a human brain. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in computer where data is processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. So, what is the computer memory? Computer memory, it is just like human brain. Okay, so we human have brain. Okay, and in that various memories are stored. Okay, so like this, in computer memory is also just like human brain. And what does a memory of the computer do? It can store data and instructions. Okay, instructions means programs. So it can store data. Computer memory, it is a storage space. Why? Because it can have to store data and instruction. So it is a storage space in the computer where what it do? Where data is processed and instructions required for processing are stored. So all the instruction required for the processing purpose, it is stored in the computer memory, and all the data or information that is needed to be processed, it is also stored in computer memory. Okay, now the memory, it is divided into large number of small parts. So memory is very big, so we have divided it into small parts. Okay, and it is called cells. तो मेमोरी जो है, मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है. जैसे आप लोग हो, आपको अपने पीछे हमने क्या पढ़ा है, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तो ये सब आपको याद है ना, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें स्टोर हो चुकी है. उसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी इंसान के दिमाग जैसी होती है, जहाँ पे जो भी हम डेटा ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो स्टोर हो जाती है. स्टोर का मतलब आप वो चीज़ उसको याद रहती है. ठीक है, जैसे आपको चीज़ें याद रहती है क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो चीज़ें डाली है, स्टोर की है, वैसे ही मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का मतलब भी एक स्टोरेज एरिया है, स्पेस है, जहाँ पे जो भी आपको डेटा प्रोसेस करना है या जो भी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है उस प्रोसेसिंग को करने के लिए, वो सब कहाँ पे स्टोर होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में. ठीक है, जैसे कि आपको मान लो कि आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, तो आपने कोई भी नंबर डाला, जैसे 12 × 4, तो ये आपने डाटा जो है एंटर किया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. तो ये डेटा पहले कहाँ पे जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा. वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड होती है. ठीक है, जो कि उसके ऊपर काम करती है और उस डेटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है. तो जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन है वो सब जो है वो स्टोर होता है कहाँ पे? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में, जैसे हमारे दिमाग में स्टोर होती है चीज़ें. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी अब डिवाइडेड है. किस चीज़ में डिवाइडेड है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम सेल्स कहते हैं. ठीक है, कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन अ मेमोरी यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ड्यूरिंग द IPO cycle, the computer's primary memory is used for flow of information and also for calculation. Now computer, it has a memory unit. Okay, memory unit, it is in CPU. I will also show you this. So computer, it also contain memory unit, and this memory unit has primary memory and secondary memory.
And during IPO cycle, what is IPO cycle? Do you remember? Input, process, output cycle, and through this cycle our computer works. Okay, first it takes the input, then process it, and then give the output. Okay, so during the IPO cycle, computer's primary memory is used so that the information it can flow, and also for calculation purpose. So if we want to do any calculation, okay, like multiplication, division, subtraction, okay, like this, then it use computer's primary memory. okay, so यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे जो मेमोरी है, आपको भी मैंने बताया मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल इंसान के ब्रेन की तरह है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह स्टोर होते हैं. ठीक है, तो आपको जो है कंप्यूटर जो है उसमें एक और चीज़ होती है मेमोरी यूनिट. ये कहाँ पे होती है? सीपीयू में होती है. मेमोरी यूनिट में भी दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो अब मैंने पिछली क्लास में चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि जो कंप्यूटर है आईपीओ साइकिल के थ्रू वर्क करता है, जिसमें आईपीओ का मतलब आपको क्या याद है? आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल, जहाँ पे पहले इनपुट जाता है, फिर उस जो भी हमने इनपुट दिया उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उससे रिजल्ट जनरेट होता है, आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो जो आईपीओ साइकिल होता है उस प्रोसेस में जो है हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का यूज़ होता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है और जो भी हमें कैलकुलेशन वगैरह करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन लेना देना होता है, वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है. तो ये मेमोरी यूनिट आपने जो है जब हमने सीपीयू पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था. तो मैं एक बार और आपको शो कर देती हूँ. ये है पेज नंबर 21 पे. देखो यहाँ पे सीपीयू है ना, इसके अंदर आपका मेमोरी यूनिट है. ठीक है, और मेमोरी यूनिट अभी मैंने आपको बताया मेमोरी यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. मेमोरी यूनिट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ मेमोरी. What is the meaning of capacity of memory? It is the capacity. Okay, so how much data it can store, that is the meaning of capacity. It is measured in terms of megabytes. So if you want to measure the capacity of memory, then it is measured in terms of megabyte. For example, measuring units there are different measuring units. Okay, for example, if you go to market to buy fruits, then the fruit seller or vegetable seller will give you fruit and like 1 kg, 2 kgs. So here kg means kilogram, so it is the measuring unit there. Okay, if you are buying milk, then the milkman he will give you 1 liter milk, 2 liter milk. So here there liter is the unit. In the same way, if you want to measure the capacity of memory, then the term that is used to measure it is the megabyte. Okay, megabytes. So bytes, what is the bytes? Bytes is a smaller unit, that is a set of 8 bits. Higher units are kilobytes, kb, megabytes, mb, gigabytes, gb. Okay, so megabytes, they are the terms that is used to measure computer's memory. Byte, it is smaller than megabytes, and it means when 8 bits, a set of 8 bits, it is called byte. And we have higher memory like kilobytes, megabytes, gigabytes. In your phone, if you are using a Jio phone, then you get 2 GB every day. Yes, so here GB means gigabytes. Okay, so it is the capacity of memory. टर्म्स यूज टू मेजर इट. तो आपको जो है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, जैसे आप मार्केट में सब्जियां लेने जाते हो तो आपको सब्जी किलोज में मिलती है, केजी में, किलोग्राम में, कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो. तो वहाँ पे किलो जो है, किलोग्राम जो है, वहाँ पे वो नापने का एक यूनिट है. ठीक है,
दूध लेने जाते हो तो आपको नहीं पता ना कैसे, तो नापने के लिए क्या बोलते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। तो लीटर वहाँ पे यूनिट है जिससे वो मेजर हो रहा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में मेजरिंग करने के लिए कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम मेगाबाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेगाबाइट्स, यहाँ पे बाइट्स, मेगाबाइट्स। ठीक है, बाइट क्या होता है, बाइट उससे छोटी यूनिट होती है। जब 8 बिट मिलते हैं ना तो 1 बाइट बनता है। जैसे कि मान लो आपको किलोग्राम होता है ना, आप 4th क्लास में आपको पता होगा किलोग्राम्स होता है, ग्राम होता है ना। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो यानी कि 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बना रहा है। वैसे ही 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बना रहा है। ठीक है, ऐसे ये छोटी यूनिट है। तो थोड़ी जो बड़ी बड़ी यूनिट्स है वो क्या होता है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, जिसको हम KB, MB, GB बोलते हैं। आपके जियो का फ़ोन है तो आपको डेली 2 GB नेट मिलता होगा, तो GB का क्या मतलब, गीगाबाइट। ठीक है, तो ये उसी से आप नेट वगैरह चलाते हो। तो ये आपका जो है मेजरिंग यूनिट है। ओके, अब कुछ और है, ये भी सब जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हमारा जो है मेजरिंग यूनिट है। जैसे आप लिखते हो ना 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, और आप क्या लिखते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये मेजर करने की यूनिट्स है। जैसे 4 बिट्स अगर होंगे तो उसको 1 निबल बोलेंगे, अगर 8 बिट्स होंगे तो उसको 1 बाइट बोलेंगे। 1 कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 1 कैरेक्टर 1 बाइट के इक्वल होता है, उसमें 8 बिट्स होती है। 1 किलो बाइट यानी कि KB में 1024 बाइट्स होती है। 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 MB होता है। 1024 GB में 1 टेराबाइट होता है, जिसको TB से डिनोट करते हैं। तो ये जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो ना बेटा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ये यूनिट्स है कि भाई 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं, 8 बिट बन के 1 बाइट बनाते हैं, इस वे में। ठीक है, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो मेमोरी इज divided into 2 parts, primary memory, secondary memory. Primary memory is again divided into 3 parts, RAM, ROM, hard disk. Secondary memory is further divided into 2 parts, CD, DVD, Blu-ray disc and pen drive. Okay, so memory जो है अभी हमने पढ़ा कि 2 टाइप में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क में, और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइडेड है CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क और पेन ड्राइव्स में। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो what you have to do, you have to read this chapter, page number 29. Okay, and I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.